everybody, all the participants, all the judges, myself Ravikant, I would like to welcome all of you in this final debate competition between Vatsalya House and Utkrist House. As you all know, that in the first round, both the teams won their debate competitions. Now it's final. So all the participants of Vatsalya House, are you ready? Yes, sir! Utkrist House, are you ready? Yes, sir! Okay, so I would like to call both the captains for the toss. This one hits and this one tails. Okay? Hits. Now, the toss won by Utkrist House. Take your seat, both the captains. Toss won by Utkrist House. So, everybody, let's start the debate competition. Utkrist House. And the topic of Utkrist House is modern education system, and the topic of Vatsalya House is Gurukul education system. So, Utkrist House, let's start. Good morning, everyone. My name is Archikar. I read in class 5th and behalf of Utkrist House, and our topic is modern education system. So let's start. What is modern education system? Modern education system is very different from Gurukul education system. Modern education teaches us about the skills required for today's and the skills are about science and technology, the science of medical science, etc. In the addition of modern education includes writing, visualization, imaginations, thinking skills, etc. In this education includes written tests to the examine. This is if the students are learning properly or not. This is a very formal way, and the method of teaching is very interesting. The modern education is just the evolution of Gurukul education system. Now, I have a question for you all. Why were children kept away from their parents in teenage when they needed must as because of their insecurities? Good morning everyone, I am Navya and we are of Vatsalya House and we are here on a debate in favor of Gurukul education. Let's start. What is Gurukul education? The students of Gurukul education are more disciplined and organized. They taught to follow a well-planned schedule in the school. This is because they are teachers by their good teachers. In modern education, we gain knowledge, but in Gurukul education system, we enhance knowledge. So, I am going to reply your question that the Gurukul education system, the students live alone with their parents because they can follow in any situation without their parents. How can they know how to live in society? स्टार्ट में Anyone? In the Gurukul education systems, the teachers teaches the students like वो अपने किसी भी सिचुएशन में अपने को ढाल सके, वैसे हमें गुरुकुल टीचर्स हमें ट्रीट करते थे. Vatsalya House, Utkrist House, next. पूछो, ये क्वेश्चन पूछो. Okay, now you are solving big maths, but the zero was invented by the Aryabhat. So if the Gurukul education was not available, बोलते जाओ तुम, बोलते जाओ. if the Gurukul education was not available, how Aryabhat invent zero? Utkrist House. Give answer. Speak loudly. Question is not going to be repeated, you have to be attentive. बोलो ऐसे बोलो. Speak.
क्वेश्चन ये है कि अगर आर्यभट्ट ने इवन जिन्होंने जीरो का खोज किया था वो गुरुकुल के पढ़े थे, अगर वो गुरुकुल में नहीं पढ़े थे जीरो का खोज वो कैसे करते, वो पूछ रहे हैं। बिना जीरो के खोज के भी हम लोग मैथ बना सकते हैं। कैसे आप बना सकते थे? अगर आपको 2000 नंबर राइट करना, आपको जीरो पता ही नहीं है क्या होता, तब कैसे करते? जब जीरो होता ही नहीं तो 2000 नंबर कहाँ से होता? तो आप लोग जो आजकल इतने बड़े-बड़े मैथ सॉल्व करते हैं, तो आप लोग तो बिना जीरो के कोई मैथ सॉल्व ही नहीं कर पाते। जब रावण का 10 सर थे, वो कैसे पता चला था जब जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था? तो उस समय जीरो तो आर्यभट्ट ने आविष्कार किया था और वो भारत की थी, गुरुकुल की पढ़ी हुई थी। लेकिन पहले मेरा आंसर का जवाब दो। मेरा क्वेश्चन है, जब आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार अभी 500 से 600 सालों पहले ही किया था, लेकिन जो रावण थे उसका 10 सर था, वो कैसे पता चला था? बोलो बोलो। जो ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और डिवीजन आप लोग बनाते हैं वो भी गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम से ही आया था। पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। पहले रावण जो थे तो उनके 10 सिर ऐसे पता चले क्योंकि आर्यभट्ट ने उससे पहले ही जीरो का इन्वेंशन किया था, ना कि 500 साल या 1000 साल। वो बहुत पहले ही इन्वेंशन हो चुका था। रावण से पहले नहीं हुआ था। जो जीरो का आविष्कार हुआ था वो 1616 ईस्वी में हुआ था। You have a proof that Mahabharat will start after that when zero was invented. You have proof that जो रावण था उसका तुम्हारे पास प्रूफ है कि रावण से पहले ही आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया? वही तो मेरा भी क्वेश्चन, आपके पास प्रूफ है क्या? Okay. Let's move towards the next topic. पॉइंट बोलो अपना। If Gurukul education system is better than a modern education system, then why girls and common people are not allowed in Gurukul? बोलो बोलो बोलो, ऑन है। In Gurukul education, all people are treated equal, देखिए but girls and common people are not allowed. Is it equality? This is the way you teachers. क्या आपके पास इसका प्रूफ है? पहले गुरुकुल में ना कि रिच पीपुल ना कि पुअर पीपुल का हम लोग भेदभाव हुआ करते थे, सबको इक्वली ट्रीट करते थे, ना कि लड़का है ना कि लड़की से। और कृष्ण और सुदामा की दोस्ती देखो, उनके बीच कभी भी दरार नहीं आ सकी। और जबकि कृष्ण जी कितने बड़े परिवार से थे और यहाँ कहाँ सुदामा कितने छोटे परिवार से थे, लेकिन उनके बीच कभी कोई दरार नहीं आई। लेकिन गुरुकुल एजुकेशन में है, क्योंकि उधर गर्ल्स और कॉमन पीपल अलाउड नहीं थे। वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे कॉमन पीपल अलाउड थे, लेकिन गर्ल्स नहीं थे। गर्ल्स कैसे अलाउड थी? आपके पास प्रूफ है कि गर्ल्स नहीं अलाउड थी? आपके पास प्रूफ है कि गर्ल्स अलाउड थी? हाँ है। पहले आप हम लोग का आंसर दीजिए ना। आप बताइए कि बस क्या प्रूफ है कि गर्ल्स अलाउड नहीं थी? आपके पास भी क्या प्रूफ है कि गर्ल्स अलाउड थी? पहले आप मेरा आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट Next topic now. आप आंसर दीजिए कि आपके पास कैसे गर्ल्स अलाउड। ये देखो। अगर आपके पास प्रूफ है तो यू हैव टू प्रूव कि गर्ल्स अलाउड। एग्जांपल से बता You सकते are हैं saying like that कि girls allowed थी तो just give some facts. तो जैसे आप कह रहे हैं कि पहले गुरु कार्य में लड़के अलाउड नहीं थी, लेकिन तो लड़के कहाँ पढ़ती थी? लड़कियां भी तो पढ़ती थी। ये तो आपका डिसएडवांटेज है ना, लड़कियां कहाँ पढ़ेंगी? You have to give line ना कि girls कहाँ पढ़ती थी, आपको जितना मालूम है बताइए। You have to give proof. तो राजा जी किधर से पढ़े थे? मॉडल स्कूल से पढ़े थे या गुरुकुल से पढ़े थे, बताइए। कौन? फिर से बोलो, आराम से बोलो। राजा जी किस स्कूल मॉडल स्कूल पढ़े थे? वो तो गुरुकुल से पढ़े थे। ठीक है। बेटा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं, लेकिन इसको पॉइंट नहीं मिलेगा किसी को, है ना। गर्ल्स अलाउड नहीं थी, लेकिन स्पेशल केस में ऋषि की जो पुत्रियाँ हुआ करती थी उनको दिया जाता था एजुकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ऋग्वेदिक पीरियड में लोपामुद्रा, कोशा, अपाला, these were some of the names of the rishi daughters who had
who had compiled the hymns of Rigveda, 10th bundle of Rigveda, right? In general, ladies को अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि बहुत सारी पहले भ्रांतियाँ थी, लेडीज़ को एजुकेशन देना है नहीं देना है, क्योंकि उनकी शादियों को लेकर के मिलता है, ये सारी चीज़ें थी। इसलिए गर्ल्स को जनरली गर्ल्स अलाउड नहीं, समझ गए? और गर्ल्स जो एजुकेशन लेती थी उस समय, वो उनके महल में ही, वो उनके घर में ही ऋषि मुनि आते थे और उनको एजुकेशन देते थे। गर्ल्स का एजुकेशन की मनाही नहीं, लेकिन वो उनके घर में ही किया जाता है। ये नहीं था कि उस समय की लड़कियाँ पढ़ती नहीं थी, उनको हर तरह की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन वो उनके घर में ही, वो उनके राजमहल में ही वो शिक्षाएँ उनको दी जाती। नेक्स्ट, अगर शिक्षा नहीं मिलती तो तीर चलाना वो कैसे सीखें? So now we start our next topic. Okay, go ahead. What is the identity of Indian education system? If someone asks you what is your education identity, तो आप क्या कहेंगे? Modulation या गुरुकुल, India's गुरुकुल education system? माइक ठीक पकड़ ही नहीं रहे लोग, माइक बोलिए, एक और बच्चा पकड़ ले। क्वेश्चन समझा दीजिए। क्वेश्चन ये है कि आखिर भारत में शिक्षा की पहचान क्या है? मॉडर्न एजुकेशन और द गुरुकुल एजुकेशन। क्वेश्चन हम लोग का ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन था कि हमारी भारत की पहचान क्या है। वही क्वेश्चन बोल रहे हैं सर भी, सेम है। बोलिए। हमारी भारत की पहचान अशोका पिलर है। नहीं है, हमारी भारत की एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। भारत की पहचान क्या है? हाँ, भारत की पहचान गुरुकुल सिस्टम है, इसका मतलब गुरुकुल ही अच्छा है, तभी तो भारत की पहचान है एजुकेशन में। तभी ना, ठीक है, गुरुकुल अच्छा है। आपने हमारी बात पर एग्री हो गए, इसका मतलब कि गुरुकुल बेटर है। ओके, ठीक है, गुरुकुल अच्छा है, मैं मानता हूँ। तो बताओ, जो कोविड-19 था 2 सालों के लिए, उस कोविड-19 में तुम्हारा गुरुकुल सिस्टम कहाँ पे था? ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, ऑनलाइन में टाइपिंग। ऑनलाइन You have to Listen, give listen. the topics. You have to don't answer first questions. First, you have to put the your thought. That what is your हमारी लोग क्वेश्चन ही ज़्यादा करते हैं। why modern education is better? Why Gurukul education is better? You have to give your points. And from that, the question will extra. It's not that you have to counter. You have to just ask the question. क्या मतलब है? Give तो some आपको बोलना चाहिए, खाली why क्वेश्चन छोड़िए। your education methodology is better than that. सुनो मैम क्या Give some that, not only ask the questions. सुनो, मैं समझ You में have आया। to prove yourself that why your education system is better than that. Okay? बोलो। Don't ask just frequent questions. चलो स्टार्ट करो। हाँ, जब कोविड आया था, उन्होंने कहा कि हम कोविड में ऑनलाइन पढ़ाई कराते थे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई हम लोग कराते थे तो उसमें बच्चों की आइज साइड पावर चली गई, हैंडराइटिंग गंदी हो गई। ये क्या हुआ? पहले गुरुकुल में तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता था, कोविड वगैरह भी उस वक्त नहीं आता था। अभी बोले, उसमें क्या होता था ये बताओ। अभी तुम नहीं सुनी मैम ने क्या कहा? उसमें क्या होता था अपना ये पॉजिटिव बताओ। पॉइंट रखो, गुरुकुल का रखो, जिसको बोलना है। अभी जो हम बात डिबेट कर रहे हैं, ये कोई मॉडर्न एजुकेशन चीज नहीं है, ये भी गुरुकुल से ही है। ओके, अभी जो हम बात डिबेट कर रहे हैं, ये गुरुकुल से आई है। तो गुरुकुल में उस समय क्या होता था? कैसे होता था गुरुकुल में? आप ये शास्त्रार्थ बताओ, पूरा शास्त्र क्या शास्त्रार्थ क्या होता होता है? शास्त्रार्थ अभी जो हम लोग डिबेट कर रहे हैं, बस नाम चेंज है। यही डिबेट भी गुरुकुल में भी होता था और उसका नाम शास्त्रार्थ था। है? उसमें क्या होता था शास्त्र? डिबेट होता था। शास्त्रार्थ मतलब क्या? तो पढ़ने का तरीका बताओ, कैसे पढ़ाई होती थी? हाँ, एक दूसरे में डिस्कशन होता था, एक दूसरे की बात जानकर उसकी परेशानियों का हल निकाला जाता था वहाँ।
आपने कहा कि एजुकेशन कैसी थी, तो एजुकेशन ऐसी थी कि अभी के स्कूल में यानी कि मॉडर्न स्कूल में सिलेबस ही हमारी ये फाइनल पढ़ाई है, सिलेबस खत्म हो गया, पढ़ाई हो गया। लेकिन हमारे गुरुकुल में हर एक बच्चे की एक फील्ड होती थी, जिसमें कि जैसे हमें तीर चलाना अच्छा आता है, हमें धनुष चलाना तो सिखाया जाएगा ही, लेकिन तीर में और अच्छा सिखाया जाएगा। ये नहीं कि बच्चे को मैथ्स एसएसटी पढ़ना है तो पढ़ना ही है, उसे जिस चीज में मन लगेगा वो उसे ही और अच्छे से सीखेगा। हमारी गुरुकुल पद्धति ये सिखाती है। तीर चलाने का अलग क्लासेस भी होते हैं। मॉडर्न क्या सिखाता है? मॉडर्न क्या क्या चीजें वो सिखाता है आप वो बताइए। मॉडर्न एजुकेशन में हमारे पास बहुत सारे लैब होते हैं, जैसे रोबोटिक्स लैब, मैथ लैब, कंप्यूटर लैब। हम लोग उससे सीख सकते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से। और बताइए पॉजिटिव कुछ और फीचर्स, मॉडर्न एजुकेशन के मोर फीचर्स। तो ये सब जो गुरुकुल एजुकेशन जो है पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है। एनईपी 2020 भी यही कहता है कि बच्चे जिस फील्ड में अच्छे हैं उन्हें उस फील्ड में ज्यादा फोकस दिया जाए, उन्हें और सब्जेक्ट सिखाया ही जाए। लेकिन हाँ, जिस फील्ड में ज्यादा अच्छे हैं उस फील्ड में उन्हें और अच्छे से सिखाया जाए। तो ये तो गुरुकुल एजुकेशन का ही फॉलो हो रहा है। इससे तो गुरुकुल एजुकेशन अच्छा है। तो एनईपी ये बोल माइक ऑफ नहीं कीजिए ना। हेलो, एनपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जैसे कि गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में क्या होता था, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता था दिखाने के लिए। जैसे अब मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में जैसे आप स्कूल में एग्जाम देते हो, उसके बाद जब रिजल्ट निकलती है तो उसे एक रिपोर्ट कार्ड में दिया जाता है और उसमें लिखा रहता है आपका परसेंटेज कितने मार्क्स है, आपने कैसे परफॉर्मेंस किया। क्या ये गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में होता था? लेकिन इससे अच्छा होता था ये। कोई बोलेगा? बोलो, तुम बोलो। बोलेगा, सब बोलेगा। अब दो पीछे दो। फ्रॉम दिस साइड यू ऑल हैव टू देख, वन बाय आप लोगों ने बोला कि हमारे गुरुकुल में ऐसे रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाए जाते थे, तो अभी के रिपोर्ट कार्ड में बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो फेल हो गया, अगर अच्छी हुई तो पास हो गया। लेकिन गुरुकुल में ऐसा नहीं होता था। ऐसा नहीं होता था कि उसमें टेस्ट नहीं होता था, टेस्ट होता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि बच्चे को एसएसटी में फर्स्ट आया तो फर्स्ट आ गया। उसमें ऐसा होता था कि जिस फील्ड में वो अच्छा है उसे जांचे, हर चीज को जांच के लेते हैं। अब तो बस पढ़ाई हुई, हो गया। और गुरुकुल में जो है सारे बच्चे पढ़ने वाले थे, और स्कूल में और क्लासेस में अगर सारे बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें से कोई ना कोई बच्चा तो टीचर को भी परेशान करता है, सारे बच्चों को परेशान करता है। पीछे वाले को। अभी 83% लोग हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट, उनके पास डिग्री तो है पर बेसिक स्किल्स नहीं है। और अभी ठीक है, ठीक है। बचपन से बताया जा रहा है कि हेल्थ इज वेल्थ, पर ये कभी नहीं बताएगा कि बस एग्जाम में लिख कर पास होना है या जिंदगी में यूज भी करना है। हाँ, गुड। पीछे पास करो। यस प्लीज आओ। खड़ा हो। इसके बाद तो जो गुरुकुल एजुकेशन है उसमें सिर्फ 2 और 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ और साइंस है। लेकिन जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। अभी जितने सारे अभी हम लोग के सब्जेक्ट्स हैं ना, उसे पढ़ते पढ़ते बच्चे डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। और अभी इतने सारे एग्जाम हो रहे हैं, उसमें बच्चा का फेल हो जाए तो वो अभी हर एक मिनट पे एक सुसाइड हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट। प्लीज आओ। दूसरा जरूरी नहीं है कि गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में सारे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। होते थे कैसे होते हैं बताओ? उन्हें जिस फील्ड गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है तो भगवान की बात तो मानेंगे ही। टीचर को भी भगवान का दिया गया है। नहीं दिया गया है, अब तो टीचर के साथ हंसी मजाक हो रहा है, फ्रेंडशिप हो रही है। टीचर का ही मतलब ना गुरु होता है। गुरु होता है तो क्या गुरु के साथ कोई हंसी मजाक करता है? यही है आपकी मैनर, यही है आपकी मैनर, यही है मॉडर्न स्कूल की सिखाई हुई चीजें। गुरुकुल एजुकेशन यस हाँ, चलो बोलो। अरे बोलो, आइए। बोलो शिवांग, क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोलते? वेट पढ़ाया जाता है। जैसे कि पहले हम लोग ईमान लेते हैं, पहले हम लोग एबीसी सीखते हैं, फिर उसके बाद वर्ड सीखते हैं, और फिर उसके बाद सेंटेंस बनाना सीखते हैं। पर ऐसे नहीं होता था। चलो। गुरुकुल में जो मन आया वो पढ़ लो।
पहले हमें रोड वर्क सिखाई नहीं जाती थी, पहले मेडिटेशन के साथ समझाया जाता था, जो लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहता था। हमें रोड वर्क करवाया ही नहीं जाता था। ठीक है, नेक्स्ट को Yes. हम लोग गुरुकुल में टीचर भी पढ़ते थे और टीचर के बारे में पढ़ते थे, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आता था। और आप तो 2-2.5 साल के बच्चे हुए नहीं कि पेरेंट्स पढ़ने के लिए भेज दे रहे हैं स्कूल की, मेरा बच्चा पढ़ेगा। ये कभी सोचते हैं कि मेरे बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं? गुरुकुल में 8 साल के बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता था, जिससे बच्चे को अच्छी नॉलेज आती थी। अब तो 2-2.5 साल का बच्चा हुआ नहीं कि स्कूल चला जाएगा। तो क्या गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में जब बच्चा पैदा होता था तभी उसको स्कूल भेज दिया जाता था? मैंने तो कहा है कि 8 साल पे भेजते हैं। Yes. उन्होंने कहा 8 इयर्स के बाद बुलाते हैं। अनिवार्य था। दूसरा तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने कहा कि जन्म लेने से भेज दिया जाता है गुरुकुल में? Okay. नेक्स्ट पॉइंट You have given आप that अपने Okay, sir. आपको कैसे पता है कि 2-2.5 साल के बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2-2.5 साल का बच्चा क्या पढ़ेगा? और बच्चों को सबसे पहले गुरु उसका फैमिली होता है, और उसी फैमिली से वो बच्चे 8 साल तक सीखते हैं। चलो पीछे से हमारे बोलो। स्कूल में 2-2.5 साल के बच्चे के लिए प्री नर्सरी क्लास होता है, जिसमें उन लोगों को खिलाया जाता है। जिनके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, वो कैसे अपने बच्चे को मैनेज करेंगे? कोई नहीं बोलेगा। इसमें क्या मेथोडोलॉजी अपनाई सब जाती बताइए है, आप। बताओ। कैसे प्री खिलाया नर्सरी जाता है? नर्सरी में क्या एजुकेशन आजकल के बच्चों को देते हैं? टीचर्स क्या बताते हैं? कैसे बताते हैं? वो लोग को खेल में पढ़ाया जाता है। जैसे ए मान लीजिए यहाँ पे ए बात है, उसको यहाँ पे रखाएगा, फिर बी रखाएगा, खिला के पढ़ाया जाता है प्री नर्सरी में 2-2.5 साल के बच्चों को। क्वेश्चन नहीं खेल कर पढ़ने में कुछ समझ में थोड़ी ना आएगा, जो घर क्यों नहीं आएगा? जवाब दो, क्यों नहीं आएगा? वो लोग ज्यादातर तो खेलेंगे ही, पढ़ेंगे थोड़ी ना। क्यों नहीं खेलेंगे? टीचर को पता है ना कि वो पढ़ाएंगे भी और खिलाएंगे भी। कितना देर खेलना है और कितना देर पढ़ना है टीचर जानते हैं। वो लोग खेलेंगे नहीं, खेल में ही पढ़ेंगे। और बच्चे में सभी कोई तेज नहीं होते, उसमें से कुछ ही बच्चे जो पढ़ेंगे, बाकी सभी तो खेलने में ही रहेंगे ना। क्यों नहीं, उन लोग को बोलने दो, आप चुप रहो। बच्चे सब छोटे उससे माइक तुम क्यों ले ली? बोल रहा था तो हाँ ना, क्योंकि सभी अपने डिसिप्लिन को मायने रखते थे और सब जो टीचर कहते वही करते थे ना। क्या प्रूफ है? हर चीज का proof। आजकल इतने सारे फंक्शन हो रहे हैं जिसके कारण बच्चों का डिस्प्लेसन एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है, लेकिन जब ट्रेडिशनल एजुकेशन थे उसमें डिसिप्लिन एक जगह रहती थी, इससे बच्चों का स्टडी बहुत अच्छी होती थी। ठीक। बच्चे जब छोटे से पढ़ेंगे तभी तो उन लोग का और देश मजबूत होगा, और तभी तो सीखेंगे स्कूल में बैठने कैसे पढ़ना है। लेकिन बच्चों का तो पहला एजुकेशन की फैमिली में ही होता है, तो फैमिली में एबीसी एक भी बात नहीं बोल रही है। तब जाके वो लोग स्कूल में आते हैं ताकि उन्हें और नॉलेज मिल सके। जिनके ये और कोई बोले? आपने बहुत सारे बच्चे बोलो। कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। मैडम ये चुप रहो। ये काउंटर नहीं बोलना, क्या है गुरुकुल में बताना। एक सेंटेंस सबको बोलना है। वही तो बोला कि बच्चे तो पेरेंट्स को इधर से बात कीजिए। टाइम नहीं रहेगा बच्चों को देखने के लिए, तो वो लोग अपने बच्चों को स्कूल ही ना भेजेंगे। जैसे कि हमारे ज्ञानोदय विश्वविद्यालय में हेड नर्सरी और टीचर पढ़ाती है, प्रोजेक्टर से पढ़ाती है। अभी आपको प्रोजेक्टर में देख के ये मान लीजिए आपको प्रोजेक्टर में तितली दिखाई गई, और मान लीजिए आपको प्रोजेक्टर में तितली दिखाई गई और आपको गुरुकुल में नेचुरल आराम से बोलो। आपके सामने दिखाएगी। ज्यादा प्रोजेक्टर में मजा आएगा या हम नेचुरली अपने आंखों के सामने देखने में मजा आएगा? Yes, sir. प्रोजेक्टर से बच्चों को पढ़ने में ज्यादा मजा आता है और वो ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। अब एक सेंटेंस सब लोग बोलेंगे भाई। हाँ। चलो, अपने पॉइंट्स के फेवर में आप सब लोग एक सेंटेंस। गुरुकुल एजुकेशन में हम मॉडर्न एजुकेशन में हम लोग ऑनलाइन हम लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में अच्छी लर्निंग ले सकते हैं। अब एक सेंटेंस के पॉइंट्स मिलेंगे, तो इसलिए सबको बोलना है एक सेंटेंस, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पॉइंट्स आएंगे। चलिए बोलो बाबू। Everyone has to speak one sentence at least in the favor of your topic. मॉडर्न एजुकेशन में हम लोग कहीं पर भी पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन के द्वारा कहीं पर भी।
नालंदा यूनिवर्सिटी। Let them speak. पूरा काउंटर नहीं हो रहा है अब, वन बाय आप वन। उनको पूरा एक सेंटेंस बोल लेने दीजिए अपने फेवर में, और उसके बाद आपके सारे मेंबर जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है वो एक एक सेंटेंस बोलेंगे और उसके पॉइंट्स हम लोग देने जा रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन हट में जाएंगे हम। हम लोग कहीं भी रहते थे तो हम वापस पढ़ सकते थे। हम दूसरा लोग टाइम चलेगा लगातार इस समय में जो पैंडेमिक आया था उसमें हम लोग कैसे पढ़ रहे थे, ऑनलाइन में पढ़ रहे थे। अगर मॉडर्न एजुकेशन नहीं आता तो हम लोग कैसे पढ़ सकते थे। चलो नेक्स्ट बोलते चलिए आप लोग, अभी काउंटर नहीं होगा, पैंडेमिक तो आपने अभी काउंटर Wait, नहीं wait. होगा। Vatsalya of this wait. Let them complete. एक एक पॉइंट सबको आप बोलना यहाँ है। बैठी हैं तो इसका मतलब कि आपको अपने पॉइंट के बारे में कुछ मालूम है। Now everyone has to speak about one sentence in the favor of your topic. Now have patience and be quiet, otherwise the marks will be deducted. हम लोग लैब और इंटरनेट की वजह से पढ़ सकते हैं। नहीं तो बोलिए। बोलो। ऑनलाइन क्लासेस में पैंडेमिक में ऐसे ही करते हैं। Next, Manvi. हम लोग मॉडर्न एजुकेशन में बेंचेस पे बैठ के पढ़ते हैं और प्रोजेक्टर के मदद से हम लोग और अच्छे से पढ़ सकते हैं। Now, हम लोग रोबोटिक्स लैब में हम लोग रोबोट बनाना सीखते हैं, मैथ्स लैब में मैथ सीखते हैं और कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर पे रिसर्च करना वगैरह वगैरह सब सीखते हैं। हो गया, सारे मेंबर्स बोलिए। Now everyone has to speak. We learn with One by nature one. and in nature. जो नहीं बोले सब बोलेंगे। वहाँ से दे दो माइक, फर्स्ट से सुनो, दो वहाँ से, वहाँ दो बच्चे को फर्स्ट, इधर हाँ उसको पहले दो। चलो स्टार्ट करो। जो आपने बोला मैथ्स लैब में हम लोग मैथ सीखते हैं तो वो किसके मदद काउंटर से नहीं सीखते करना हैं? है आपको, अपना पॉजिटिव रखना है। गुरुकुल कैसे अच्छा है बताइए, कैसे मैथ्स पढ़ते थे? ठीक है बताइए। गुरुकुल में हम लोग मैथ्स ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड पढ़ते थे जो हमारे गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट को दीजिए उसको, है 1 by 1 आ रहा है ना, चलो स्टार्ट। गुरुकुल सिस्टम में हम लोग आराम से just keep it, otherwise I am going to deduct your marks. yes. गुरुकुल सिस्टम में हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ते थे जिससे हम लोगों का माइंड फ्रेश होता था और हम लोग पढ़ने में बहुत अच्छा दिल लगता था। इसको दो, तुम्हारे बगल में दो। अभी नहीं, काउंटर है, बैठ जाइए। बोलो जी, हाँ बोलो। अगर टीचर क्लास से चल जाती है तो हम लोग बहुत हल्ला करते हैं, लेकिन गुरुकुल एजुकेशन में ऐसा नहीं था। गुरुकुल एजुकेशन में सब लोग डिसिप्लिन में रहते थे। आगे वाले को दो, उसको दो, वो बचा हुआ है। बोलो बाबू। हाँ, 1 point। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम्स में जो साइंटिस्ट रहते थे वो बहुत ज़्यादा ही इतने अच्छे इन्वेंशंस करते थे जो आज हमारे काम आ रहे हैं और आजकल के साइंटिस्ट उन्हीं इन्वेंशंस को डिस्कवर कर रहे हैं। पास करो, हाँ। और गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम के बच्चे जो है ना इतने डिसिप्लिन थे, खुद के लिए तो खाना बनाते थे और अपने गुरु के लिए भी खाना बनाते थे। चलो पीछे दो। जब जब आप लोग का घर बनता है तो आप गिरी कार्य करते हैं ना, वो कहाँ से सीखे हैं? गुरुकालय से सीखे हैं ना। तो गुरुकालय के बहुत सारी चीजें अब अभी तक याद रखें। क्यों? पीछे हाँ बोलो। नेक्स्ट। हम लोग गुरु का रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन अभी हम लोग टीचर्स के साथ फ्रेंडशिप हंसी मजाक करते हैं। उधर दो। नेक्स्ट। अब क्या बोलो, बोलते जाओ, पास कर दो। अनन्या वायर देखो, पास करो। गुरुकुल में हम लोग को कुछ लेकर नहीं जाना होता था, बुक्स कॉपीज बैग। गुरुकुल में हम लोग नेचुरली पढ़ाई करते थे, पर अब आजकल मॉडर्न स्कूल्स में हम लोग को बैग्स लेकर जाना पड़ता है जिसमें बहुत सारी किताब कॉपी रहती है, जिससे
बच्चों के कंधे दर्द कर जाते हैं और उनकी हाइट भी रुक जाती है। अक्षत को दो। गुरुकुल में जो पढ़ाया जाता था वो उस चीज को दिखा के पढ़ाया जाता था, इससे हम लोग और अच्छे से उसको समझ पाते थे। और जो NEP 2020 आया है ये भी गुरुकुल से ही आया है। ये हो गया टीम, हो गया। Ask some question. चलो स्टार्ट करो। अब कोई भी पूछ सकता है, ओपन अप हो गया। जब भी अपना घर बनता है तो फिर कार्य करते हैं और ये सब हम लोग गुरु कार्य सीखे तो अब अभी भी क्यों करते हैं? चलिए नेक्स्ट आंसर दीजिए। उत्कृष्ट। First answer, then ask. जरूरी नहीं है कि सब चीज गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम से ही आया है। आप जब मोबाइल अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो आप मोबाइल पे भी तो सर्च कर सकते हो। तो वो तो जो मोबाइल है वो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से आया है। जरूरी नहीं है क्योंकि योगा की बुक भी आती है। और योगा कहाँ से आया ये बताओ। बताइए। योगा भी जो है ना गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम से है। जरूरी नहीं कि जिम ही करेंगे, योगा से भी हमें आधी शारीरिक जो है ना बीमारियां खत्म होती हैं। पूछो क्वेश्चन पूछो। Let them ask their question. Wait. Okay. So one member said that. My question is, आज अनुनासिक पढ़ाई क्यों जरूरी है? चलो अभी मॉडर्न एजुकेशन क्यों जरूरी, क्या बोला क्वेश्चन क्या है जी? Modern. आधुनिक पढ़ाई क्यों जरूरी है? हाँ तो दो उसको। Why modern education is important now these days? बोलो। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ही हम लोग कह रहे हैं कि उसे हम लोग पढ़ सकते हैं। गुरुकुल में भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। मॉडर्न में हमें प्रोजेक्टर पे दिखाया जाता है पर गुरुकुल में हमें मेडिटेशन के साथ पढ़ाया जाता है जो लॉन्ग समय तक हमें याद रहता है। तो आप स्कूल क्यों आए मॉडर्न एजुकेशन सीखने के लिए? जाके गुरुकुल में पढ़िए। चलो बताओ। जाके गुरुकुल में पढ़िए। आपको नहीं क्या मालूम, आज के मॉडर्न स्कूल जो है वो पूरी जगह लिए जा रहे हैं। अभी गुरुकुल धीरे धीरे आ रहा है। एक ना एक समय में मॉडर्न स्कूल के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। एक समय में अभी नालंदा यूनिवर्सिटी में लोग कहाँ से पढ़ने आते थे। वेस्टर्न कल्चर के लोग आकर बोल चुके हैं कि भारत को जीतना है तो उसकी गुरुकुल पद्धति को तोड़ना होगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि गुरुकुल पद्धति नेसेसरी नहीं है? अगर गुरुकुल एजुकेशन की बात है जो सबसे बड़ा नाम थॉमस जैफरसन मैकेले का आता है जो इंडिया को स्टडी करने आए थे और वो जानना चाह रहे थे कि इंडिया को कैसे जीता जा सकता है। और फिर उन्होंने इंडिया का बैकग्राउंड ढूंढा और जहाँ इंग्लैंड के संसद में जाके बोला कि अगर इंडिया को जीतना है तो उसके गुरुकुल पद्धति को तोड़ना होगा। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। काउंटर अटैक। आधुनिक शिक्षा के लाभ क्या है? आप बताइए लाभ क्या है? Why they will say? आप पूछ सकते हैं कि आप बताइए मॉडर्न आधुनिक शिक्षा के लाभ क्या है? गुरुकुल क्या पूछ सकते हैं लाभ क्या है, आधुनिक के नहीं। गुरुकुल के लाभ क्या हाँ है? मैं क्यों बोलूं? हाँ बताइए जी। Okay, Karan, you ask a question sometime later. What you ask? जब लाइन बाय लाइन पूछा जा रहा था तो तुमने कोई एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नहीं था वो सब एडवांटेज था। अभी तुम अपना क्वेश्चन पूछो अच्छा, बाबू। वो क्वेश्चन पूछा था तो you have to remember ना कि उसने क्या हाँ। क्वेश्चन पूछा था काउंटर है। जैसे कि तुम लोग बोल रहे हो कि इसको हम लोग नेचर से पढ़ाई करते थे तो अभी देखकर बताओ, सन को बताओ देखकर कि कितना टाइम हो रहा है। अभी सन बराबर रखा है। देखकर बताओ कितना टाइम हो रहा है। नेचर से ना पढ़ाई करते थे तुम लोग। टाइम सिस्टम बताओ। टाइम पद्धति। अभी आप लोग को बोलना है कि मॉडर्न अगर अच्छा तो आप लोग देख बताएं कि कैसे अभी टाइम कितना हो रहा है। तो हम सन को क्यों देखकर बताएं? मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे डिवाइस होते हैं, हम डिवाइस से देखकर बताएंगे। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में ना सन से मून से जिससे देखकर बताना बताएंगे। खुद को आंसर अभी आप जितने मॉडर्न कुछ बना रहे हैं ना उससे ज्यादा जो साइंटिस्ट थे ना वो गुरुकुल से पढ़ के निकलते थे। दो इसको माइक और बोलो तो अभी वो वाला माइक और साइंटिस्ट ने गुरुकुल एजुकेशन को से क्यों बनाने लगी? अभी सन हम लोग से कितना
First करो. First answer of my question. पहले के साइंटिस्ट लोग एक ही बार में देखकर बता देते थे कि चांद और सूरज कितने दूर है धरती से. अब के साइंटिस्ट बता सकते हैं? उनको क्या साइंस लैब दिया गया है, साइंस लैब की मदद से भी नहीं देखकर बता सकते हैं. और नहीं बता सकते, नहीं बता सकते. साइंस लैब के बिना तो वो लोग नहीं बता सकते, साइंस लैब से ही बता सकते हैं. और पहले के साइंटिस्ट लोग बिना साइंस लैब के मतलब ऐसे खड़े ही खड़े देखकर बता देते थे कि कितनी दूरी पर है चंद्रमा. गुरुकुल से पढ़े हुए साइंटिस्ट ने सूरज से लेकर धरती तक की दूरी बताई थी कि कितनी है, ना कि आपके कोई मॉडर्न स्कूल से पढ़े हुए किसी साइंटिस्ट ने जो बताई. हनुमान चालीसा में मेंशन है, जो हनुमान चालीसा में मेंशन है. Christoph, counter the question. आंसर क्वेश्चन दोनों कर सकते. Counter the point. आंसर दो और भी बोलो. हाँ हाँ. Please repeat your question. वो कह रहे हैं कि आज जो भी चीजें आप करते हैं किसी न किसी की हेल्प से करते हैं, और गुरुकुल में वो लोग जस्ट एक्सपीरियंस करके उन चीजों को बता देते हैं. तो आप बताइए कि आप उस क्वेश्चन को क्या कैसे बताना चाहेंगे कि क्यों बिना हेल्प के चीजें नहीं बताई जा पा रही है. जरूरी नहीं है, अभी भी ऐसे कुछ साइंटिस्ट हैं जो बिना साइंस लैब के भी बता सकते हैं सूरज को देख के कि कितना समय हो रहा है. आपके पास प्रूफ क्या है, नाम बताइए. प्रूफ की बातें ना करें आप. हाँ तो नाम बताइए, ऐसे कौन कौन लोग हैं. नहीं. नाउ कंक्लूड योर टॉक. Students of Gurukul education are more disciplined and organized. They are taught to follow a well-planned schedule in the school. That is why, because they are trained through techniques such as meditation that help them to enhance their focusing power. हो गया ये ओनली. And Gurukul बैठिए आप. अब For India of system education, it might do choice as inviting your child in Gurukul education best school, but there is no choice. Ancient India needed quality, labor, and other things. But today's generation totally depends upon technology. Okay, so both the teams debated very well. So first of all, a very good clap for everybody, to both the teams, both the participants, all the participants of both the teams. Now, we would like to request our judges. And both the teams, all the participants of both the teams, they explained their topics very well. Like Vatsalya House has explained that in Gurukul education system, they taught by using experiential learning. The Vatsalya House, Guest House explained the modern education, and nowadays the modern education is the most necessary thing for all the students, all the institutions. Both the teams were excellent, the captains, all the participants. So, after some minutes, our judges are going to announce the results. So, both the house get ready for the result. Over to our judges. Very good students. You have done tremendous job. आप लोगों ने बहुत अच्छा किया. मॉडर्न एजुकेशन एंड गुरुकुल एजुकेशन पे आप लोगों का टॉपिक था. आप लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे. मैं तो यही बोलूँगी कि गुरुकुल एजुकेशन जो था वो पद्धति हमारे इंडिया की पहचान थी, हमारी संस्कृति की पहचान. जितने भी हमारे चारों वेद आए हैं वो गुरुकुल पद्धति से ही आए हैं. हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितनी भी उन्होंने बातें की हैं, वो सब हमारी गुरुकुल पद्धति की वजह से. ये हमारी संस्कृति अगर इनके रिच तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण हमारी गुरुकुल पद्धति ही है. एजुकेशन सिस्टम ही है जो हमारी संस्कृति का पहचान था और अभी भी है. लेकिन समय के साथ साथ सारी चीज़ें बदलती हैं और गुरुकुल पद्धति भी हमारे समय के साथ साथ बदली. और आज हम लोग मॉडर्न एजुकेशन के साथ ये काम कर रहे हैं. हमारा स्कूल भी मॉडर्न एजुकेशन को ही फॉलो करता है. लेकिन एनईपी की बात करें या हमारे स्कूल की मेथोडोलॉजी की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोग गुरुकुल पद्धति की भी अपनाते हैं. यानी प्रैक्टिकलिटी के साथ. जैसे गुरुकुल में
हम लोग जो भी सीखते थे हमारे एंसेस्टर्स वो प्रैक्टिकलिटी के साथ सीखते थे, अनुभव के साथ सीखते थे। तो हमारा भी कोशिश ये होती है, हमारे स्कूल की भी कोशिश ये होती है कि आप सबों को जो सिखाया जाए वो प्रैक्टिकलिटी के साथ सिखाया जाए, यानी अनुभव के साथ। जैसे आप लोगों ने बताया कि आप रोबोटिक्स लैब में रोबोटिक्स सीखते हैं, मैथ्स लैब में मैथ्स सीखते हैं, वैदिक मैथ्स सीखते हैं, आप लोग अबाकस सीखते हैं, आप लोग लैंग्वेज लैब में बोल करके सीखना सीखते हैं कि किस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखे जाते हैं। तो इस तरह से मॉडर्न एजुकेशन भी अगर आया है तो वो एक गुरुकुल का ही पद्धति को अपनाते हुए आगे बढ़ रहा है। बिना गुरुकुल पद्धति के मॉडर्न एजुकेशन भी अधूरा है, और मॉडर्न एजुकेशन समय की डिमांड है। अगर ये नहीं होता, अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती, तो वाकई जो अभी कोविड में के दौरान, पैंडेमिक के दौरान हम लोगों को दिक्कतें आई थी, अगर मॉडर्न एजुकेशन की हम लोग टेक्नोलॉजी नहीं अपनाते, अगर ऑनलाइन क्लासेस और इंटरनेट के माध्यम से अगर हम उनकी सहायता नहीं लेते, तो आप तक एजुकेशन पहुंचाना बहुत ही मुश्किल था। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। गुरुकुल पद्धति ने शिक्षा का संवयन किया है, स्टार्ट किया है, और उसी पद्धति के उन चीज़ों को हम लोग आगे लेते हुए मॉडर्न एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये समय की पहचान है। तो आप लोगों ने अपने टॉपिक्स बहुत अच्छे से रखे हैं, और इसी के साथ मैं विनर्स अनाउंस करती हूँ। आप लोग बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया था आप लोगों ने, बट विनर्स आर देयर। सो विनर ऑफ द जूनियर डिबेट कॉम्पिटिशन इज वात्सल्य। Congratulations to Vatsalya House and their participants. So, big round of applause for everybody, the winning team and the runner-up team. Now the debate is over.